Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start probability chapter objective type questions. Here we are going to start probability chapter that is objective type जिसमें हम करेंगे बोर्ड के previous year questions. So without any delay, let's come to the topic here. Here, question number 1, if you will see that the probability of getting a number greater than 3, 3 से बड़ा नंबर लेना है, 3 से बड़ा नंबर लेना है किसके ऊपर? डाई के ऊपर. डाई के ऊपर हमें पता है नंबर होता है 1 से लेकर कहाँ तक? 6 तक. We have a number here 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So greater than 3 we have 4, 5, 6. It is here 3. Total is 6. Answer is here 1 by 2. Okay, so option these are not correct, but answer is 1 by 2 here, right? Now next question we have, someone is asked to take a number from 1 to 100. आपको नंबर लेने हैं 1 से लेकर कहाँ तक? 100 तक. Find the probability that it is a prime number. So first of all we find out all the prime number between 1 to 100. 1 से लेके 100 तक आपको सारे प्राइम नंबर काउंट करने हैं. So it is 3, 2, 5, 7, 11, 17, 19 like this, right? All the numbers which are prime number. Here we count these numbers are 25. Total number that is equal to 100. So probability that is favorable outcome divided by total outcome that is 25 by 100, which is equals to 1 by 4. Question is the probability expressed as a percentage of a particular occurrence can never be. याद रखिए probability अगर simple पूछी हो तो probability that always lie between 0 to 1. 0 से 1 के बीच में होती है. 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 के 1 के बीच के जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हमारी प्रोबेबिलिटी में आती हैं. लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रोबेबिलिटी एज अ परसेंटेज, सो इट लाइज बिटवीन 0 to 100. कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से 100. और ये आपके बोर्ड में आया हुआ है, राइट? Now question is here, a girl calculate the probability of her winning the first prize in a lottery that is 0.08. Probability of winning that is equals to 0.08, right? 0.08. If 6,000 tickets are sold, then how many tickets has she bought? Just read the question carefully first. Here we have total that is equals to 6,000. Probability we know that is equal to favorable outcome divided by total outcome. Favorable outcome we don't know. Let's consider as x. Total it is given here 6,000. So it is equals to x by 6,000 into this. X equals to 0.08 multiplied by 6,000, right? So it is here 480. आंसर इज 480. फेवरेबल आउटकम्स जो आए हुए होंगे वो हमारे कितने आए होंगे? 480. Now question is the probability that a number selected at random from a number 1, 2, 3 up to 15 is a multiple of 4. 1 से लेकर 15 नंबर तक आपको काउंट करना है वो नंबर जो 4 के मल्टीपल हो. तो 4 के नंबर जो मल्टीपल होंगे 4, 8, 12, राइट? तो कितने फेवरेबल केसेस हो गए? 3. 1 से लेके 15, टोटल नंबर कितने हो गए? 15. तो आपके पास वैल्यू आ गई 1 से लेकर 15, दैट इज हियर 15 एंड multiple of 4 that is 3. 3 by 15, answer is 1 by 5. Now question is, two coins are tossed simultaneously. The probability of getting at most one head. आपको पता होना चाहिए at most और at least के बारे में. तो अगर आप दो कॉइन को टॉस करोगे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज इक्वल टू 4. फेवरेबल आउटकम्स आपसे पूछा है एट मोस्ट. एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा. एट मोस्ट वन हेड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक. तो एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और एक से कम भी हो सकता है, राइट? One head and less than one head means zero head, right? So now here we will see one head. One head की यहाँ पर केसेस कितनी हैं? 1, 2. Zero head. Zero head के केसेस कितनी हैं? टेल टेल. So here how many cases? 3, right? अब अगर आपके पास आ जाए एटलीस्ट,
तो एटलीस्ट का मतलब होता है 1 और उससे ऊपर, तो 2 हेड भी हो सकते हैं, राइट, 1 और 1 से ऊपर, राइट। सेम एटमोस्ट में हमारे पास नंबर ऑफ केसेस क्या बने, 3, 3 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 3/4। क्वेश्चन इज इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट जो अकर ना हो। लेट्स टेक एग्जांपल, एक आपके पास एक बॉक्स है, राइट, उस बॉक्स में आपके पास ब्लू कलर की बॉल्स हैं, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड कलर की बॉल अगर बाहर निकले, तो क्या आप ब्लू कलर की बॉल्स में से रेड कलर की बॉल निकाल सकते हैं? नो, इट मीन्स द इवेंट कांट अकर, सो हियर प्रोबेबिलिटी इज जीरो, फेवरेबल आउटकम जीरो, डिवाइड बाय जो भी कुछ टोटल हो, हमें क्या लेना देना, 0 by something that is equals to 0. So here question this option D, that is 0 is correct. Now question is which of the following cannot be the probability of an event. Now only we learned, क्या learn किया था कि the probability of an event that lies between, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेके 1 तक, राइट। अब वो केसेस देखो जहां पर प्रोबेबिलिटी 0 से लेस हो और 1 से बड़ी हो, राइट, तो वो केसेस हमारे अक्कड़ नहीं हो सकते। 1/3 इट इज 0.3 पॉसिबल है, 3/100 दैट इज 0.03 दैट इज पॉसिबल, 0.1 दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, 17/16 सो दैट इज नॉट पॉसिबल हेयर। सो हेयर वी से दैट दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट and can't be possible here, right? Question is an event is very unlikely to happen, its possible cases are, listen, देखो probability जो unlikely to happen मतलब नहीं हो सकती, तो it means वो जो जीरो के क्लोज हो, राइट, तो यहाँ से देख लो जीरो के क्लोज सबसे ज्यादा क्लोज कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0.001, राइट। नाउ question is the probability of an event is P. Probability of complementary. We know sum of event with the not happening of that event equals to 1. किसी के होने की और नहीं होने की the possibility जब होती है वो 1 होती है। अब आपको फाइंड करना है probability of E. तो probability of E बार इधर जाएगा, 1 minus P हो जाएगा, तो आंसर is 1 minus P here, right? Now question is probability of A denote the probability of an event of A. We know probability that always lie between 0 and 1. 0 और 1 के बीच में होती है, तो आंसर is C option, right? Question is if a card is selected from a deck of 52 card, find the probability of its being a red face card. क्या होना चाहिए, रेड फेस कार्ड होना चाहिए, तो रेड फेस कार्ड क्या होगा यहाँ पर हमारे पास है 6 रेड और 6 ब्लैक, यहाँ से टोटल कार्ड जो आपके पास हैं वो कितने हैं, 52। फेस कार्ड जो होते हैं वो किसके इक्वल हो जाते हैं, टोटल 12 होते हैं, 12 फेस कार्ड्स में से 6 आपके पास रेड है और 6 आपके पास क्या है, ब्लैक कार्ड है, तो आपके पास 6 रेड कार्ड है और 6 क्या है, ब्लैक कार्ड। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेड फेस, तो रेड फेस कार्ड क्या होंगे, 6, और टोटल आपके पास कितने हैं, 52, तो आंसर आ गया 6/52, राइट। नाउ क्वेश्चन इज a card is drawn from a deck of 52 card. The card E is that card is not an ace of heart. So listen very carefully. 52 cards हैं, right? हमारे पास 13 सारे कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं, राइट, 13 होते हैं हमारे पास हार्ट के, 13 हमारे पास होते हैं स्पेड के, 13 हमारे पास होते हैं क्लब के, और 13 हमारे पास होते हैं किसके, डायमंड, राइट। नाउ हियर वी से दैट एस ऑफ हार्ट नहीं होना चाहिए, तो एस ऑफ हार्ट को हटा देते हैं, तो टोटल कार्ड 52 में से एक ही कार्ड तो हटेगा, कितने रह जाएंगे, 51। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई के फेवरेबल कितने होंगे हमारे पास, 51, सो आंसर इज 51 हियर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर लेस देन 3, 3 से लेस ओड नंबर, आप सोचो डाई के ऊपर होता है 1 2 3 4 5 6, लेस देन 3, 3 से लेस ये नंबर होते हैं सारे के सारे, इसमें लेस ओड नंबर तो एक ही तो होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल 1, टोटल दैट इज इक्वल टू 6, आंसर कितना आ गया हमारा 1/6, ऑप्शन नंबर हियर दिस इज करेक्ट, राइट। Question is the probability of getting a bad egg in a lot of 400 is 0.3. आपको probability given है, right? तो probability we know the formula. Probability of bad egg that is equals to किसके equal? Favorable
हमें नहीं पता, नंबर x मान लेते हैं। यहाँ पर टोटल पता है कितना है 400, बैक आउट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.035, इट इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय कितना 400। सो हियर x इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 400 मल्टीप्लाई 0.035, okay, as we multiply we get equal to 14, right? So answer is here 14. Now, question is one ticket is drawn at random from a bag containing ticket from 1 to 40. Probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 5. तो आपको 5 के मल्टीपल निकालने हैं, तो 5, 10, 15, 20 सारे के सारे क्या हैं 5 के मल्टीपल। हाउ मेनी आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, आंसर इज हेयर 8/40, राइट। क्वेश्चन इज आउट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर वन प्राइम नंबर इज सिलेक्टेड। देखो टोटल प्राइम नंबर आप देखो और उसमें से सबसे पहले वन डिजिट के प्राइम नंबर देखो, वन डिजिट के, तो वन डिजिट के प्राइम नंबर वन तो होता ही नहीं है, ना तो प्राइम ना कंपोजिट, तो आएगा 2 3 5 7, राइट। आउट ऑफ दिस वी नीड टू फाइंड आउट इवन, तो इवन क्या होगा एक ही होगा तो 1, राइट। तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय कितना 4, आंसर इज 1/4, राइट। Now question is here, a bag contain 3 red, 2 blue ball. If a marble is drawn at random, probability of drawing a blue marble, 3 रेड हैं 2 ब्लू हैं, तो प्रोबेबिलिटी ब्लू मार्बल की कितनी होगी 2, और टोटल कितना होगा 5, तो आंसर इज 2/5। नाउ क्वेश्चन इज अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज अ वॉवल। देखो सबसे पहले काउंट करते हैं प्रोबेबिलिटी में कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, right? Total is 11. How many vowels are there? Here we see O, A, I, I. 4. So here answer is 4/11, means option number C is correct, right? Now next is here question, a fair dice are thrown once, so probability of getting a composite number less than 5। डाई के ऊपर कंपोजिट नंबर 5 से लेस नंबर होता है 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ से 1 नॉट अ प्राइम नॉट अ कंपोजिट, 2 आपका प्राइम नंबर होता है, 3 आपका प्राइम नंबर होता है, 4 ऐसा होता है जो कंपोजिट होता है 5 से लेस होता है। सो फेवरेबल केसेस 1, राइट, टोटल केसेस 6, आंसर इज 1/6। क्वेश्चन इज इफ अ लेटर इज चूजन at random from the letter of English alphabet, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लेटर को चूज किया गया और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दिल्ली की कितनी होगी। तो दिल्ली में वर्ड काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स है, टोटल कितनी है 26, तो आंसर इज 5/26, राइट। Question is probability that a two-digit number selected at random with a multiple of 3 and not a multiple of 5। 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 5 का नहीं। तो सबसे पहले काउंट कर लो 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 ऐसे करके, राइट। सबको काउंट करेंगे, कहाँ तक काउंट करने हैं 2 डिजिट तक, तो कितने आ जाएंगे 90, 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, राइट। नाउ हियर देयर शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, तो 15 को कट कर देते हैं, 30 को कट कर देंगे, देन फ्रॉम हियर वी कट 45, राइट, फ्रॉम हियर वी कट 60, लाइक दिस, राइट। तो आपको जब आप इनको काउंट करोगे वी हैव हियर आउट ऑफ 90, देखो 22 डिजिट के नंबर काउंट करने थे, आप देखोगे 24 ऐसे नंबर हैं। देखो टोटल आपके पास 30 है, जो टोटल थ्री मल्टीपल है वो 30 है, उसमें से 1 2 3 4 यहाँ से आपने काउंट कर दिए, कट कर दिया 15 30 45 45 30 60 या 90, कितने कट कर दिए 6, तो 30 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 24। 24 ऐसे नंबर होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे बट 5 के नहीं होंगे, तो हेयर वी गेट हेयर 24/90, राइट, 24/90, राइट। इफ इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइज, टोटल प्राइस कितनी है 5, 20 ब्लैंक है, तो आप बताओ टोटल जो प्राइस होंगे वो कितने होंगे 5 और 20, लॉटरी कितनी बनेगी 25। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज, प्राइज मिले, मिले मतलब फेवरेबल केसेस 5 हो गए, तो आंसर कितना आ गया 5/25, दैट इज इक्वल्स टू 1/5, राइट। नाउ क्वेश्चन इज हियर इफ अ नंबर x is chosen at random from a number, numbers given है
कौन कौन से नंबर है x के? माइनस का 2 हो सकता है, माइनस का 1, 0, 1 एंड 2। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन 2। तो पुट करते हैं, सबसे पहले -2 पुट करो। -2 का होल स्क्वायर लेस देन 2, तो क्या आएगा 4। 4 क्या 2 से लेस होता है? नो। देन -1 की वैल्यू पुट करते हैं, -1 का होल स्क्वायर लेस देन 2, ये आएगा 1 लेस देन 2, यस दिस -1 इज द करेक्ट वन। 0 पुट करते हैं, 0 लेस देन 2, यस। 1 लेस देन 2, यस। 2, देखो लास्ट 2 को पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 लेस देन 2 हो सकता है? नॉट पॉसिबल। सो दीज 2 आर नॉट पॉसिबल, राइट, एंड दीज 3 आर पॉसिबल। सो हियर what we say, that number of favorable cases, that is 3, total cases 5, answer is 3 by 5, right? Question is, which of the following a relationship this which of the following relationship is correct? Probability of E plus probability of E bar that equals to 1, right? So this is right, बिल्कुल किसी चीज के होने की और नहीं होने की probability का सम कितना होता है? 1। Question is, two dice are thrown together. Probability that sum of two number will be a multiple of 4. Sum of two number क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले काउंट करो, प्रोबेबिलिटी यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट, यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6, एड दिस नंबर 1 और 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आएगा आपके पास 3 4 5 6 7 8, 3 में 1 ऐड करो 4 5 6 7 8 9, 4 में 1 ऐड करो 5, 4 में 2 ऐड करो 6 7 8 9 10, यहाँ से 6 7 8 9 10 11, यहाँ से काउंट करेंगे 7 8 9 10 11 and 12, right? Question is multiple of 4, so here we find out multiple of 4, 1 2 3, right, 4 5 6 7 8 and 9, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, how many? 9 total cases here, 6 and 6, 6 6 are 36, so here 9 by 36, that is 1 by 4, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1 by 4, right? A letter is chosen at random from the letters of the word assassination. The probability that the letter chosen in a vowel is this. So first of all, we need to count out the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, right? Total number of words, that is letter, that is 13. Out of this, how many are vowels? Vowels we will count here, 1 2 3 4 5 and 6. How many? 6. So here 6 by 13. Now the probability it is given कितनी है? 6 by 2x plus 1, 2x plus 1 किसके इक्वल है? 6 by 13 के। 6 से 6 कैंसिल किया, मल्टीप्लाई किया, 13 किसके इक्वल आ गया? 2x plus 1 के। 2x plus 1 अगर 13 है तो प्लस 1 इधर जाएगा, माइनस 2x किसके इक्वल आएगा? 12, x की वैल्यू आएगी 12 by 2, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो आंसर इज x इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल, राइट? नाउ क्वेश्चन इज हियर, Ramesh buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random, a tank containing 5 male and 9 female. Then find the probability that is a male fish. Male fish कितनी है? 5. Total कितनी है? 14. तो answer is 5 by 14, right? Now next question, a number x is selected from a numbers 1 2 3. So first of all we write down here, x is selected, that is from 1 2 and 3. Second number, that is y, that is selected from 1 4 and 9. We need to find out xy, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जा 1 2 and 3, then 1 1 जा, here we take 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 9 खोलो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27. क्वेश्चन इज दैट इट इज लेस देन 9, प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 9 हो, so these all are the numbers which are less than 9. So total is 3 here, 3 here, 3 3s are 9, total is 9. Product less than 9, that is 1 2 3 4 5, it is 5, right? So here number of favorable cases 5, and then the total we will write 5 by 9, answer, right? Question is,
There are 1,000 sealed envelope in a box. 10 of them contain a cash prize of 100 each. 100 of them contain a cash prize of 50 each. 200 of them contain a cash prize of 10 of each. Rest do not contain any cash prize. So first of all, we find out the total cash prize which are not here, right? So first, let's see this. Total is 1,000 envelopes, right? Out of these 1,000, we have 10 of them have a cash prize, 100 of them have a cash prize, and 200 of them contain 10 rupees cash prize. So, total having envelopes having cash prize, that is 310. Out of this 1,000, we subtract this 310, that is equals to 690. So, 690 envelopes are there which have a no cash prize. So, we divided 690 divided by 1,000, that is equals to 0.69. So, answer that equal to 0.69. Okay, this is the answer 0.69. So I think you like the video, you understood the question. So if you like it, please share with your friends and subscribe the channel to get the updates, notification related to your board exams, related to your all the subjects. Thank you. Bye bye.